बहुत बहुत धन्यवाद साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ good afternoon. So first of all, on behalf of 30 million people of Punjab, I welcome you in the land of five rivers, gurus, patiyas, and the land of hardworking people. So I now take opportunity to express my sincere appreciation and gratitude to our guest on the dais, Mr. Naresh Trehanji, Chairman, Vedanta Group. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੱਫੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ and Mr. Sanjeev Puri, Chairman and MD of ITC Group. Ms. Nisaba Godrej, Executive Chairman of Godrej Consumer Product Limited. Mr. Rakesh Bharti Mittal, Vice Chairman of Bharti Group or Chairman of this Indian School of Business. Mr. Arun Murugappan, MD of Murugappa Group. Mr. Simon George, President of Cargill India. Mr. Ravikant Jaipuria, Chairman and MD of RJ Group. Mr. Rajesh Jeturskar, Executive Director, Mahindra and Mahindra. And Mr. Prabh Das, Board of Director, HMEL. And all the guests from throughout the world and different parts of India. So I again welcome you in the Investment Summit 2023. As all the speakers said that Punjab is a land of five rivers. Punjab is a hope and football of India. And Punjabis are global citizens. Throughout the world, there are Punjabis and successful Punjabis. Punjab is the only state which has franchise. There's a big Punjab in Vancouver, Surrey, in BC, Canada. Big Punjab in Edmonton, Calgary. Big Punjab in Toronto. A big Punjab in San Francisco, San Jose, Fremont, Chicago, New York. A big Punjab in Birmingham, London, in Sydney, in Perth, in Melbourne, in Hamilton, Auckland, Singapore, Malaysia. So we are global citizens. And we are very hard-working people. Together we can stimulate healthy economic growth. And you are the source of the opportunities that youth of Punjab and India wants to avail, especially these days. This is the best opportunity for India to grow. मैं सुन रहा था जब त्रेहन साहब बोल रहे थे, मिस निसाबा बोल रहे थे और भारती ग्रुप से बोल रहे थे, तो दिल से बोल रहे थे. लिख के बोलना, दिल से बोलना डिफरेंट बात होती. लिख के सिर्फ आंकड़े बताए जा सकते हैं, फिगर्स, लेकिन जब बोलते हो वो दिल से निकलना चाहिए.
तो हमारी जड़ें जो हैं वो पंजाब में हैं। पंजाब इज फुल ऑफ आइडियाज। बहुत से बड़े बड़े आइडियाज पंजाबियों ने क्रिएट किए हैं, चाहे वो जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ओला, बहुत बड़े बड़े आइडियाज हमारे स्टार्टअप्स। तब तो स्टार्टअप्स भी नहीं होते थे, इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती। सो दिस समिट will not be about MOUs. It will be about knowledge sharing, about brainstorming, and about learning from each other. And I think MOU culture is also outdated now. दिखा देते हैं 25 लाख करोड़ के MOU हो गए, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता। बड़े बड़े लग जाते हैं एग्जीबिशंस पर, आता नहीं है कुछ। मैं चाहता हूं जो भी आए दिल से आए, और पंजाब की धरती है, जो भी यहाँ दिल से आता है इतनी बरकत है, उसको लॉस नहीं होता कभी। पंजाब ने कभी किसी को घाटा नहीं पाया। पंजाब पूरे देश को खाना खिलाता है। इसीलिए हमने आज डिफरेंट मीडिया के, प्रेस के, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल से, उनके चीफ एडिटर्स सबको बुलाया है, यहाँ बैठे हैं वो, ताकि वो खुद सुन सकें कि किसने क्या कहा था। क्योंकि होता क्या था, पहले उनको बाहर रख लिया जाता था, यहाँ कुछ और कहते थे, बाहर जाके पॉलिटिशियन कुछ और कह देते थे, तो बाद में उनको पता चलता था ये तो मैंने कहा ही नहीं था भाई, ये किस कहाँ से निकल आया। तो ये बात नहीं हो। हम आपको माहौल देंगे। तो ऑलरेडी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें वी आर टॉप 5 अचीवर्स स्टेट्स जो हैं, वी आर वन ऑफ देम in ease of doing business, ranking done by Government of India. And Punjab received the Digital India Award from the Honorable President of India. पंजाब जो है वो नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को, नए विचारों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। ये हमारे स्वभाव में है, हमारी नेचर है। चाहे वो आज़ादी का संग्राम हो, चाहे वो हरा इनकलाब हो, ग्रीन रेवोल्यूशन, चाहे वो किसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी हो, पंजाब सबसे पहले अडॉप्ट करता है उसको। पहले क्या था, पंजाब के पास सिर्फ एक हाईवे था, NH1। आप देखोगे तो ज्यादा इंडस्ट्री उसी के आसपास, ये शुरू हो जाता शंभू बॉर्डर से, राजपुरा, फिर मंडी गोविंदगढ़, देन खन्ना, देन दोराहा, लुधियाना, फिलौर, गुराया, फगवाड़ा, जलंधर, अप टू धारीवाल, अमृतसर से धारीवाल, गुरदासपुर। बट नाउ डेज rail connectivity, air connectivity, and road connectivity, one of the best in the country. We have 4 national highways, 4 domestic airports, out of which 2 will be the international. Amritsar is already international, but Mohali will be the international airport very soon. Flights from Mohali to Heathrow, Mohali to SFO, Mohali to Toronto, Mohali to the Western world. And it's a 10 to 20-minute drive from all the industries, IT sector, startups, housing,
in whatever business you are. And we are starting a new airport in Halwara, that's 30 kilometers, 35 kilometers away from Ludhiana. So Ludhiana is known for hosiery, Ludhiana is known for bicycles, textile, मिनी मैनचेस्टर भी बोला जाता लुधियाना को. लुधियाना से बहुत से हमारे मित्र इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए हैं. और पंजाब is the country's largest tractor manufacturer and contributes to 29% of India's total production. The state ranks second in tractor export with a 22% share. Sonalika, Mr. Mittal, then Pre Tractors, then Mahindra and Mahindra, Swaraj, and the CEOs and officials from TAFE, they are willing to move into Punjab for the North India. So the state has India's 75% share in sports goods manufacturing. This is the key point. 75% share in the sports goods manufacturing. स्टॉल लगा है, देख के आना. स्पोर्ट्स का स्टॉल है कि जलंधर से. And you can see the rugby balls which will be used in September 2023 World Cup of Rugby. Made in Jalandhar. The FIFA World Cup, recently we saw the FIFA World Cup, all the footballs made in Jalandhar. Cricket bats, cricket balls, made in Jalandhar. So Jalandhar is the hub of sports industry, and we are planning to put a very updated and latest sports university in Jalandhar. So there's a big scope in sports industry. State contribute 80% in bicycle manufacturing and 92% of the total bicycle components manufactured in India. Hero is there, A1 is there. Now they are in EV sector also, and state of Punjab is the first state to introduce the EV policy today. We introduce the EV policy. So जब हमने पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी, ईवी पॉलिसी और लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई, हमने स्टेक होल्डर से बात की, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की, एमएसएमई से बात की, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की, छोटे दुकानदार से बात की. 90% of suggestions are in there in my latest industrial policy. 90% of suggestion of industrialist is changeable. कई बार प्रैक्टिकल जब करते हैं तब कुछ कमियां बाद में पता चलती हैं, तो अगर उसमें कुछ रहेगा तो हम चेंज करते रहेंगे. लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि पंजाब में एक स्टिक हो जाए. और फ्रेडनबर्ग है जर्मनी से, क्लास है जर्मनी से, वर्वियो आ गई है, वो जो स्टबल बनने के, वो लहरा काका में उनको प्लांट, उनका 18 अक्टूबर को उनका प्लांट चल गया था. सो दे नीड 1 लाख metric ton of parali per year. So that means around 50,000 acres उसमें पराली नहीं जलेगी. और वो बायोगैस बना रहे हैं इंडियन ऑयल के साथ उनका, और जो भी उनका एनओसी ये वो था वो सब हमने दे दी. अब मैं इसी बात पे आता हूं. मेरे पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए
15-20 दिन की बात, बड़ा नाम। उन्होंने कहा कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा पंजाब में और इससे इतना एम्प्लॉयमेंट जो है जो जनरेट होगा, और मैं लैंड मेरे पास खुद है, मैं लैंड मैं बाय करूंगा, बस एक चीज चाहिए। मैंने कहा जी क्या? कहते जी गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा जी मिलेगी। जी सर, पहले जो गवर्नमेंट थी उनके पास भी हम आए थे कि गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिली। मैंने कहा जी चलो पहले वालों की बात छोड़ दो, बस मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल मिलेगी मिलेगी। तो बस अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाए तो बहुत बड़ा काम होगा। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट है ना हमारे साथ। मैंने सोचा गवर्नमेंट सपोर्ट पे बहुत जोर दे रहे हैं, जो मतलब वजन उस पर रख के बोल रहे हैं। मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ, मैंने सोचा क्या चाहिए होगा। बिजली का टैरिफ के बारे में बात कर लेंगे, CLU के बारे में बात कर लेंगे, या मुझे लैंड बैंक जो है आपकी उसमें से ज़मीन दे दो, ऐसा कुछ कर लेंगे। मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड? वो कहते जी गवर्नमेंट से मुझे सपोर्ट चाहिए, तंग मत करना जी, ये सपोर्ट चाहिए। अच्छे, मुझे हैरानी भी हुई, दुख भी हुआ कि मतलब सरकारें जो हैं वो तंग करने के लिए नहीं बनाई जाती। सरकारें फैसिलिटी देने के लिए, सहूलतें देने के लिए बनाई जाती हैं। तो मैं आपको इन द अदर वे कह रहा हूं कि आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन तंग करने वाली नहीं, ऊपर उठाने वाली। अगर जो एग्जिस्टिंग है यहाँ वो अपना प्लांट बढ़ाइए, जो यहाँ नहीं है वो आइए। 3-4 आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज एंड रेवोल्यूशनरी स्टेप हमने लिए। ऑल द डिसीजन मेकिंग टीम ऑफ माय गवर्नमेंट इज देयर, ऑफिसर्स सारे। CLU, आपने जमीन खरीद ली, आपने नाभा के पास जमीन खरीद ली, आपने मोगा के पास जमीन खरीद ली, फैक्ट्री लगानी है। CLU उसके लिए 6 महीने कम से कम, बुधवार आ जाना, वीरवार आ जाना। वो बुधवार वीरवार आते ही नहीं है। चलो 6 महीने बाद कहीं हो गया, किसी न किसी तरीके से काम हो गया, मंदिर में माथा टेक के आए, शुक्र है भगवान काम हो गया। अभी सोच ही रहे थे कि काम हो गया, पोल्यूशन सर्टिफिकेट वाले आ गए, उनके चक्कर, फिर उनका हो गया, फायर वाले आ गए, उनका हो गया, फॉरेस्ट वाले आ गए। 1.5 साल ऐसे लगा, जमीन खरीद ली थी। यू बाय द लैंड एटलीस्ट years ago or 1.5 years ago, बट फॉर्मेलिटीज वो पूरी नहीं हो रही गवर्नमेंट की, उसमें भी पैसे लग रहे हैं। नाउ हम क्या कर रहे हैं, हमने आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया निकाला है इसके सोल्यूशन के लिए। तो दिलीप जी वो कब तक हमारा रेडी हो जाएगा? वो 10-15 डेज, 10-15 दिन में हम उस पर रेडी हो जाएंगे, प्रोसेस में है। सो वी आर गिविंग ए कलर कोडिंग टू द स्टैम्प पेपर्स। If you buy land for industry, you have to buy green color of stamp paper. Maybe costly हो सकता है, and give us 10-15 days and give us the address of your land. There, the fire, pollution, forest team will visit there. After 15 days, we will give you assurance that this is the charges of CLU, this is the charges of pollution, this is the charges of fire. And तहसीलदार ने जब साइन कर दिए ग्रीन स्टैम्प पेपर पर, यू आर गुड टू गो। अगले दिन भूमि पूजन करके अपनी फैक्ट्री शुरू कर लो। 15 दिन कोई आपके पास ऑफिसर आए 6 महीने में, 1 साल में, यू जस्ट हैव टू शो the stamp paper, the green color. The green color stamp paper means you have every kind of NOC. Same in housing.
मे बी रेड, एंड हाउसिंग के चार्जेस हम उसमें चार्ज कर लेंगे। हाँ, हाउसिंग के लिए आपने कॉलोनी जमीन खरीद ली, वो कॉलोनी घर नहीं बिके, तो आपने कहा जी मैं तो यहाँ इंडस्ट्री लगा लेता हूँ जितनी बच गई। लेकिन तब हम कहेंगे फिर कि आपके पास स्टैम्प पेपर कौन सा है, वो रेड दिखाएगा, तो हमने कहा इसके लिए तो ग्रीन चाहिए होगा, आपने ग्रीन क्यों नहीं खरीदा। सो आपको रेड और ग्रीन के बीच जो डिफरेंस है वो पे करना पड़ेगा, देन वी विल चेंज इट टू ग्रीन। और जो एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर जो सेल डीड होती है वो नॉर्मल येलो जो भी कलेक्टर रेट है उस पर होती रहेगी। खेती के लिए जमीन खरीदी, खेती ही करने वाले ने बेची, उसकी में कोई दिक्कत है। तो CLU, ये वो वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड्स पंजाब में आपको सुनने को ही नहीं मिलेंगे। ये CLU, ये NOC, ये इन नामों, इन नाम से ना, CLU नाम से डर लगने लगा है यार, ये क्या हो, ये तो पंगा होता है यार। तो वो पंगे वाला काम जो है वो खत्म करने वाले हैं हम। और क्योंकि मैं इतना बड़ा मैंडेट लेके आए हैं हम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज देयर, 92 सीट्स आउट ऑफ 117। सो लोगों को उम्मीद है, जब हम चुनाव प्रचार कर रहे थे श्री अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में, तब लोगों को भी हम गारंटियां दे रहे थे, वी वर गिविंग गारंटीज टू द पीपल दैट वी विल जनरेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पंजाब। वो कौन करेगा, वो तो फिर आपके बिना हो नहीं सकेगी। तो इसीलिए हमारा एक ही आपसे डिमांड है, 2 यूनिट लगाने का प्लान है। हम 3 यूनिट की आपको परमिशन दे देंगे, लेकिन अगर आप 500 लड़के लड़कियों को काम दे रहे हो तो उसमें 700 कर दो, 1000 कर दो, ताकि हमारे यूथ को काम मिल जाए। अगर यूथ को काम मिल गया, वो यूथ है जिसने पहले देश बदला, जिसने देश, जब इंपोर्ट करते थे हम अनाज, तो हमको एक्सपोर्ट करने लायक बना दिया। वो धरती जो है, वो उसके वारिस भगत सिंह के, वारिस पीरों फकीरों के हमारे इस पास हैं। तो इंडस्ट्री जो है, मैं जैसे पहले कहा, अभी जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ सिटीज में ही रहें। उसमें क्या है कि जो मेरा आइडिया है उसमें हम ये चाहते हैं कि थोड़ा पंजाब के अंदर जाइए, रूरल एरियाज ऑफ पंजाब, फरीदकोट, मोगा, सुनाम, धूरी, संगरूर, मानसा, बठिंडा, सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, 3 hours drive from Delhi, and there are 4 highways, national highways are there. अभी जम्मू कटड़ा, दिल्ली कटड़ा बन रहा है ऑलरेडी, लुधियाना टू संगरूर बाया जींद, बाया रोहतक बन चुका है, गुड़गांव तक जाता है। आगे बठिंडा जामनगर बन रहा है। तो क्योंकि अगर आप शहर में आओगे, ज़मीन भी थोड़ा कॉस्टली मिलेगी, लेबर को माइग्रेट करना पड़ेगा, तो लेबर नया घर खरीदेगी, कमरा खरीदेंगे, बच्चों को लाएगा स्कूल पढ़ाने के लिए, उसकी सारी सेविंग उसी में चली जाएगी। बजाय इसके कि हम लेबर के पास पहुंच जाएं, ज़मीन भी आपको सस्ती मिलेगी और वो भी शाम को अपने घर जाएगा, सुबह वो फ्रेश होकर ज़्यादा एनर्जी से आपके पास आएगा। सो फॉर दैट गवर्नमेंट इज डेवलपिंग integrated industrial township, has taken a major decision to build 20 rural industrial clusters and 15 industrial parks. Rural. We will give you the industrial parks. फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट बना देती है गवर्नमेंट, लेकिन फोकल पॉइंट बना के कहते जी हमारी जिम्मेदारी खत्म है। आपकी बहुत सी इंडस्ट्री होगी फोकल पॉइंट में, आपके जॉइंट वेंचर वाली कंपनी आई जर्मनी से, इंग्लैंड से, तो फॉरेनर्स आए आपके जो पार्टनर है,
उनको अपने फैक्ट्री में लेके जाना है। गाड़ी तो है, मर्सिडीज भी है, BMW है, सब कुछ है, लेकिन आपको डर ये है यार उस सड़क से लेके जाऊंगा तो क्या सोचेगा ये। तो कुछ जो फोकल पॉइंट की और इंडस्ट्री एरिया की सड़कें हैं ना, वो एक बार बना के किसी ने देखी ही नहीं कि सड़क बची है या नहीं। कहीं कहीं सड़क भी है वहां। सही है ना जी। तो दिल में ये आता है ना यार क्या सोचेगा ये कि यार यहाँ फैक्ट्री आपकी। तो हम उसके लिए बजट में भी, आने वाले बजट में 10 मार्च को बजट पेश कर रहे हैं, उसमें भी रखेंगे। एंड CSR जो आप देते हो, हम चाहते हैं उसमें से कोई कुछ परसेंटेज ऐसी रख ली जाए जो CSR की जो पैसा है वो आप ही पर खर्च किया जाए। कनाल सिस्टम को हम आपके पास लाना चाहते हैं। धरती का पानी निकालना बहुत महंगा पड़ रहा है और है भी नहीं पंजाब में, और हम पार्टीशन से पहले का कनाल सिस्टम है उसको अपडेट करने में अभी से लगे हुए हैं। हम हर फैक्ट्री तक, हर खेत तक कनाल वाटर चला जाए तो पंजाब जैसा कोई पूरा स्टेट, पंजाब जैसा दुनिया में पंजाब जैसा कोई सूबा नहीं है। फूड प्रोसेसिंग में आ जाइए, पठानकोट से ज्यादा मीठी लीची नहीं बन सकती, कहीं मिल ही नहीं सकती। अबोहर फाजिलका के किन्नूज, लुधियाना के और जलंधर के पोटैटोज, कपूरथला का गार्लिक, होशियारपुर के पॉपुलर और आम मैंगोज, पूरे पंजाब का गन्ना, जो मर्जी प्रोसेस करो, और इतनी फर्टाइल लैंड है, जो मर्जी बीज दो उग जाएगा। बीज फेंक दो, थोड़ी सी नमी चाहिए, उग जाएगा। सब बीज उग जाते हैं पंजाब में। एक मैं आपको दिल से श्योरिटी देता हूं कि ये वो स्टेट है जहां हर किस्म के बीज उग जाते हैं, लेकिन नफरत का बीज यहां उगता नहीं। सोशल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, हमारी सोशल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। हम ये छोटे मोटे झगड़ों में या कोई उसमें नहीं पड़ते। हमें गुरु नानक साहब ने कहा है कि सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। पूरी दुनिया की भलाई मांगने वाली गुरबानी हमारी गुरु है, शब्द गुरु। सो अभी कहीं भी दुनिया में कोई क्राइसिस आ जाए, अभी यूक्रेन और रशिया की आपस में जंग चल रही है, अभी टर्की में और सीरिया में अर्थक्वेक आया, तो आपको बाकी चीजें देखने को मिले ना मिले, पंजाबियों का लंगर जरूर मिल जाएगा अगले दिन आपको। कहीं से भी आए वो कहते हैं जी ये लाइन में लग जाओ और लंगर लेते जाओ। तो हम लोग जो हैं वो इमोशनल लोग हैं पंजाबी। देश के लिए सबसे बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां जो हैं हमारे पंजाब की हैं, और आज़ादी लेने के लिए भी कुर्बानी है और आज़ादी को कायम रखने के लिए भी हमारी कुर्बानी है। आज भी हमारे जवान जो है सीना तान के खड़े हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पंजाब की तरफ या देश की तरफ किसी बुरी नज़र से देख ले वो। सो ये भी हम आपको मेक श्योर करते हैं कि आपको इतना अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे डायस पे बिजनेसमैन बैठे हैं उनके ऑलरेडी काम है, यहाँ किसी किस्म का दिक्कत नहीं है। अभी टाटा स्टील लुधियाना में उन्होंने शुरू किया है, सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर इन लुधियाना। सनातन टेक्सटाइल उन्होंने भी आए हैं, उनके भी जो, हाँ बैठे हैं, तो उन्होंने भी राजपुरा के पास ज़मीन खरीद ली है। और जैसा मैंने कहा फ्रेडनबर्ग जर्मनी की कंपनी है, सेंसर बनाते हैं कारों के, क्लास पहले ही है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, वो इसीलिए आ रही हैं कि उन्होंने देखा है कि हाँ काम करने का माहौल है। पहले माहौल नहीं था, इसीलिए कुछ आए और बैड एक्सपीरियंस लेके चले गए, लेकिन हम उनको वापस लेके आएंगे। हमारे पंजाबी में कहावत है, सवेर दा भुल्लिया जे शाम नू घर आ जाए उन्हें भुल्लिया नहीं कहते। अगर सुबह का भटका हुआ शाम को अपने घर आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते। तो परिवार जो है
आप हमारे परिवार के मेंबर हो। आई वेलकम यू इन फैमिली ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एंड 30 मिलियन पीपल। आप यहाँ का हिस्सा बनो। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपको आने वाले दिनों में लेटेस्ट टेक्निक्स भी बदल जाती हैं हर रोज, उसके हिसाब से हम भी बदलेंगे। 16 मेडिकल कॉलेज पंजाब में हम बनाने जा रहे हैं। 3 का उद्घाटन हो गया, बनने शुरू हो गए हैं। 16 हमारा टारगेट है। और वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू द स्कूल ऑफ एमिनेंस। 170 seats are there, Vidhan Sabha seats. So every Vidhan Sabha will have one school of eminence. यहाँ बच्चे 9th 10th 11th 12th थे, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्डिंग की कोचिंग, उस फील्डिंग की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, ताकि वो 12वीं तक जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाएं एक्सपर्ट बन जाएं। हो सकता है आपको पहले साल जब पहले इनिशियल जो फैक्ट्री आपकी आएगी या मैन्युफैक्चरिंग या जिसमें भी जिस फील्ड में भी हो, आपको इनिशियली बेंगलोर से या पूना से मुंबई से एक्सपर्ट लाने पड़े। लेकिन हम आपसे ये भी आग्रह करते हैं कि हमें बता देना कि वो एक्सपर्ट जो हैं वो उन्होंने कौन सी डिग्री की है। 1 साल में वही डिग्री वही स्किल पैदा करके हम आपको यहीं से वो जो है स्किल्ड पीपल आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट, मोहाली खास तौर पे तो बहुत से मेरे मित्र बैठे हैं जो मेरे साथ ट्रैवल भी करते हैं, ये बताने के लिए, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा तो शायद ये लगेगा पॉलिटिकल स्पीच है जी, ऐसा कैसे हो सकता है। वो अगर जो काम यहाँ कर रहा है 10 साल से 20 साल से 25 साल से, अगर वो कहेगा कि मेरा एक्सपीरियंस ये तो ज़्यादा मायने रखता है। अगर वो गारंटर बन जाएगा तो ज़्यादा आपके लिए भी इजी हो जाएगा कि अगर इन्होंने कहा है तो कुछ ना कुछ उसमें। तो कोरोना कोविड-19 के बाद एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ, उसको भरने के लिए पंजाब सबसे अच्छी स्टेट है। और हमारे यूथ में एनर्जी है, बस उनको काम मिल जाए, वो आपके काम को 3-4 गुना बढ़ाएंगे। क्योंकि पंजाबी जो है वो ऐसे सीधा अकेला काम नहीं करता, वो कुछ ना कुछ और भी करता रहता साथ में। कोई आइडिया, जुगाड़ लफ्ज़ डिक्शनरी को पंजाबियों ने दिया है, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं वो किसी। क्योंकि पता क्या है, कई बार क्या होता है, मैं जब चेन्नई गया तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए मुझे मिलने, उन्होंने मुझे कहा, जब मैंने बताया दिखाया हमने के यादव साहब ने पूरा जब स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन दी पंजाब की, उसने कहा जी हमें तो आज पता चला है कि दिल्ली के आगे भी देश है। मैंने कहा जी असली देश तो दिल्ली के आगे ही है, आइए तो सही आप एक बार। तो कई बार नहीं पता चलता। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक चिड़ियाघर में एक शेर था, वो लोगों से डरता था। जैसे ही लोग उसके पास आते थे पिंजरे के पास फोटो खिंचवाने के लिए, वो मुंह छुपा लेता था। तो चिड़ियाघर के जो ऑर्गेनाइजर थे वो बहुत परेशान हुए, यार इसकी वजह से लोग टिकटें ले रहे हैं, ये फोटो भी नहीं खिंचवा रहा, डरता है लोगों से। तो उन्होंने डिस्कवरी चैनल के एक्सपर्ट बुला लिए लंदन से कि ये देखो शेर क्यों डरता है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए उस पर, 24 घंटे उसकी सर्वेलेंस में रखा और 15 दिन पूरा उसका एक्टिविटी जांच उसकी तारीफ की। आफ्टर 15 days दे रीच टू अ स्टनिंग रिजल्ट। उन्होंने कहा जी इसकी मां भी पिंजरे में थी, ये पैदा ही पिंजरे में हुआ है, इसलिए इसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। शेर को जितनी देर माहौल नहीं मिलेगा वो शेर नहीं बनेगा। शेर जब जंगल में अपने झुंड को, बड़े बड़े भैंसों को, बड़े बड़े
हिरनों को, जिराफ को गर्दन से पकड़कर मारते हुए देखता है, तब वो अपने पंजे हाथ पांव हिलाता है, तब धीरे धीरे वो शेर बनता है। तो पंजाबी जो है वो पिंजरे में रहना जानते नहीं है, वो तो नेचुरल जंगल के शेर हैं। वो अपना भूखा रह लेंगे लेकिन शिकार अपना खुद करेंगे। तो आप इस धरती पे आपको कोई किसी किस्म की कमी, हॉस्पिटैलिटी के लिए वैसे भी जाने जाते हैं हम तो। आज कल कल कर देंगे आज साग और मक्के की रोटी तो आएगी ना। हाँ, वाइट वाइट कलर का मक्खन होगा, सीधा भैंस से ही आता है हमारे यहाँ मक्खन, बीच में प्रोसेसिंग नहीं है उसकी कोई। तो हॉस्पिटैलिटी के लिए हम जाने जाते हैं और आपका आदर मान सत्कार करेंगे। हमारे पंजाब के बारे में मशहूर है कि पंजाब भारत एक मुंदरी और पंजाब नगीना, आए कोई यहाँ 2 दिन के लिए रहता है 1.25 महीना। तो आप यहाँ अगर कई सालों के लिए आओगे तो कई साल आगे तक आप यहीं रहोगे। और मैं क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बोल दिया गया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, तो मैं हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स यहाँ पहुँचे, अभी 2 दिन चलेगा समिट, और मीडिया भी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मीडिया का कॉर्नर है। अगर आपने कुछ भी बताना है, अगर कोई आपको पूछता है तो आप जो भी बताना चाहते हो वो वहाँ बता सकते हैं। और साथ साथ में एग्जीबिशन भी है और नॉलेज शेयरिंग भी होगी एक दूसरे से। हो सकता है आपस में कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जिनके एक दूसरे का बिजनेस बढ़ाने में आपको जो है वो फ़ायदा हो। तो मैं आज शाम को कल्चरल शाम भी है, क्योंकि हम कल्चरल स्टेट है। आप एयरपोर्ट पे देख ही लिया होगा आपने कि हम लोग तो अपने गेस्ट का वेलकम भी फुलकारी ओढ़कर और ढोल बजाकर करते हैं। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द इन्वेस्ट पंजाब समिट। आई एम assuring you that you will invest in the best. That's called Punjab. Thank you very much. Thank you, Honorable Chief Minister, sir, for gracing this very special occasion. Mr. Kamal Kishore Yadav, Chief Executive Officer, Invest Punjab, is a man who walks the vision and a dynamic officer. He has a very wide exposure